Good morning. Welcome to Swapna Study Circle. This is second episode of article topic. Myself, Muhammad sir, as an English faculty for Standard 10, State and CBSE, as well as 12th Standard. So, in the last episode, we will discuss about the indefinite article, which is a and. Now, we will learn about definite article. So definite article is not the. It is used at many places. Some uses we will see here. So number one, it is used for showing particular thing or matter. Means this definite article is used for showing particular thing or matter. When we will discuss when we write about any particular thing or any particular matter, then before that noun we have to use the. For example, I saw the snake whose color was black. You can see in this example, I use the before the snake, before this snake. Why? Because I am saying or I am talking about that particular snake whose color was black. If I rub these sentence, then if I mark this full stop here and consider this is a black, then what will be the article? Yes, A. Why? Because I saw a snake, simple. When I add the quality of that snake, which was long, which was short, whose color was brown, whose color was yellow or red, then at that moment I have to add this the here. Why? Because the sentence is whose color was black. Okay, understood? So when we think or when we write about a particular thing or a matter, then in that sentence we have to use the before the noun. Okay. Then second use, it is used for showing permanent position. It is used before permanent position. For example, the east, the west, or in the morning, in the night, the morning. ओके, हम लोग क्यों यूज करते हैं द परमानेंट पोजीशन के पहले? क्योंकि इनका पोजीशन कैसा है? परमानेंट है। जैसा ईस्ट परमानेंट है, वेस्ट ये परमानेंट पोजीशन है, नाइट, मॉर्निंग। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मॉर्निंग की जगह नाइट हुई हो या फिर नाइट की जगह आफ्टरनून हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए इसके पहले यानी ये परमानेंट पोजीशंस है, इसलिए परमानेंट पोजीशंस में द यूज किया जाता है पोजीशंस के पहले। ये था सेकंड यूज। देन थर्ड वन, it is used before geographical names. Geographical names के पहले भी हम लोग the यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल the names of rivers, the names of mountain ranges, oceans, regions, deserts and all. जब कभी भी geographical नाम किसी सेंटेंस में आते हैं और वहां पे अगर ब्लैंक है और आपको बोला जाता है कि राइट प्रॉपर आर्टिकल इन द ब्लैंक,
उस वहां पे हमें द या आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। अब ज्योग्राफिकल नेम्स कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द हिमालयन रेंजेस, अरेबियन डेजर्ट्स, द अरेबियन डेजर्ट्स होता है, देन द अंटार्कटिक ओशन, आर्टिक ओशंस। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है, जब कभी भी ज्योग्राफिकल नेम्स के बारे में हम लोग जब लिखेंगे या फिर ऐड करेंगे, तभी हम लोगों को द या आर्टिकल यूज करना है। देन नंबर 4, इट इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल नेम्स। अब हिस्टोरिकल नेम्स क्या होते हैं? जो भी जितने भी हिस्टोरिकल नेम्स हैं उसके पहले अगर ब्लैंक है और बोला गया कि प्रॉपर आर्टिकल वहां पे पुट अप करना है, तो वहां पे हमको द या आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, ए या फिर आर नहीं। पर एग्जांपल्स क्या है? इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हम लोग द ताजमहल बोलते हैं, द कुतुब मीनार होता है, द चार मीनार होता है, अ कुतुब मीनार नहीं, अ चार मीनार नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि ताजमहल एक ही है पूरे वर्ल्ड में, कुतुब मीनार एक ही है, चार मीनार एक ही है। यानी जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये क्या है? ये सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है इसके पीछे, इसलिए इन सब हिस्टोरिकल नेम्स के पहले हम लोग द या आर्टिकल यूज करते हैं। देन नेक्स्ट नंबर 5, इट इज यूज्ड बिफोर religious books names। religious books names, जितने भी religious books names हैं, for example the Ramayana, the Mahabharata, these are the epics, the Bible, the Quran, the Buddha and his Dhamma, the Hinayana, the Mahayana, ये सब examples हैं इसके religious books। These are the religious books। जिस तरह से बाइबल के बेस पे क्रिश्चियन कम्युनिटी चलती है, द भगवद गीता हिंदू कम्युनिटी, द कुरान मुस्लिम कम्युनिटी, इन सब के एक रिलीजियस बुक्स है जिसके बेस पे उनके रिलीजन्स फॉलो करते हैं। तो उन सब रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले हम लोगों को आर्टिकल यूज करना है द। नंबर 6, इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नंबर्स। अब ये काउंटेबल नंबर्स क्या है? काउंटेबल नंबर्स क्या है? फॉर एग्जांपल एक 25 स्टूडेंट का क्लास है, उन 25 स्टूडेंट्स में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का एक टेस्ट है। अब होता क्या है, टीचर उसी समय उस टेस्ट का रिजल्ट शो करते हैं। अब 10 में से 10 2 बच्चों को है, 10 में से 9 कुछ 4 बच्चों को है, और 10 में से 8 कुछ 10-12 बच्चों को है। तो जो फर्स्ट आया है वो ऑब्वियसली 10 में से 10 रहेगा, जो सेकंड है वो ऑब्वियसली 10 में से 9 रहेगा, और जो थर्ड है वो 10 में से 8 रहेगा। अब जैसे टीचर बोलते हैं द फर्स्ट रैंकर्स प्लीज स्टैंड अप, वैसे वो जो 2 बच्चे हैं जो 10 में से 10 स्कोर कर लिए हैं वो खड़े हो जाएंगे। यानी उस टीचर ने क्या बोला, द फर्स्ट रैंकर्स, 2 बच्चे खड़े हो गए। जब टीचर अनाउंस करता है द सेकंड रैंकर्स, तो जो सेकंड रैंकर्स है यानी जो 10 में से 9 मार्क्स जिसको है वो खड़े हो। फिर जब टीचर ने अनाउंस किया द थर्ड रैंकर्स, तो 10 में से 8 जितने लोगों को है, जितने स्टूडेंट्स को है, वो उतने स्टूडेंट्स वहां पे खड़े हो। बताने का मतलब क्या है कि टीचर ने पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को बोला है क्या? नहीं, टीचर ने उन स्टूडेंट्स को अनाउंस किया है जो फर्स्ट रैंकर है, जो सेकंड रैंकर है, जो थर्ड रैंकर है, यानी पर्टिकुलर उस ग्रुप को क्या नाम दिया? द फर्स्ट रैंकर। तो 4 बच्चे सेकंड रैंक में, उन ग्रुप को नाम क्या दिया? द सेकंड रैंक।
जो 10-12 बच्चे थर्ड रैंक में है उस ग्रुप को नाम क्या दिया, थर्ड रैंक। यानी ये तो काउंटेबल नंबर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम लोग काउंट भी करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर काउंट करना है, बच्चे ऐसे बैठे हैं और मुझे अगर काउंट करना, मैं क्या बोलूंगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ। यानी ये जो काउंटेबल नंबर्स है उसके पहले भी हमें द आर्टिकल यूज करना है। तो इस तरह से ये डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। फिर एक बार रिवाइज करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर शोइंग पर्टिकुलर थिंग और मैटर। यानी जब कभी भी पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर मैटर के बारे में हम लोग जब बोलते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, उस समय वहां पे जो नाउन होता है उसके पहले अगर ब्लैंक है तो वहां पे द आर्टिकल यूज होगा। देन सेकंड वन, परमानेंट पोजीशन के पहले भी द आर्टिकल यूज होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द वेरी कोल्ड मॉर्निंग, है ना, इस तरह से। देन ज्योग्राफिकल नेम्स के पहले भी हमको द आर्टिकल यूज करना है। द नेम्स ऑफ ओशन, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, रीजन्स एंड ऑल। हिस्टोरिकल नेम्स के पहले भी द आर्टिकल यूज करना है। रिलीजियस बुक्स नेम्स, उसके पहले जो भी रिलीजियस बुक्स नेम्स है उनके पहले द आर्टिकल यूज करना है। देन एट द लास्ट मोमेंट काउंटेबल नंबर्स के पहले भी द आर्टिकल यूज होता है। तो इस तरह से ये डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे फिनिश होता है। उसी तरह से हमारा जो टॉपिक था इसके पहले के वीडियो में हमने इंडेफिनेट आर्टिकल देखा और ये है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, थैंक यू।